तो ये एक this will be a free flowing session. So there is hi Ashish. There is no PowerPoint. There is nothing. I'm just going to keep it as simple as possible. A mix of English, Hindi, and I'll try to make it as interesting as possible for all of you. We are going to talk about success. So हम success के बारे में बात करने वाले हैं. तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि as I am talking, to know that you are with me, if you can, if you like a point or you want to say something about a particular point that I might have made, please put it in the chat and be with me, body and soul, for the next 45 minutes or so. And if there is some time permitting, maybe we can take some questions towards the end. I'll leave that to Bharat. So are you all with me? Are you also, can you put a yes in the chat and just share with me that yes, we are with you. So I'm going to keep you engaged. I'm going to make you keep using the chat as much as possible. That's the best way to engage on a motivational session on Zoom. Wonderful, wonderful. So I think we have people from Gujarat and Rajasthan, Bharat. I'm speaking from Mumbai. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so we have people from Gujarat and Rajasthan. Okay, excellent. Right. So first of all, thank you so much for inviting me for this session. And thank you so much for considering me to come and talk something about a very beautiful subject like success. I'm very, very grateful to the organization कि आपने मुझे मौका दिया है कि मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर कर सकूं. I'm based in Mumbai and I run my company Hariharan School of Success Education for the last 12 years and more, since November 2009. I used to work in the corporate world before that. I'm an author, a Reiki Grandmaster. I teach meditation, healing, motivational speaker. So I do different things, but my purpose in my life is, of course, to be good to my family, take care of them, and of course, to grow my son spiritually, and also totally committed to making HSSC one of the finest and the most exciting training organizations in the world. So that's what I breathe, that's what I eat, that's what I live for. So, so as you can see, today's topic is very interesting. It's called Success Satsang. So हम एक सत्संग करने वाले हैं सक्सेस के बारे में. और बचपन से मैंने गुरुओं का सत्संग सुना है, तो उस वजह से ये जो शब्द है, ये मेरे एक टाइटल के साथ जोड़ दिया मैंने इसको, और मैंने इसका नाम दिया है सक्सेस सत्संग. सो हम सक्सेस के बारे में आज कुछ बातें करेंगे, और जैसे मैंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको मजा आए, आप कुछ सिर्फ सीखे ही नहीं, लेकिन यहाँ से आप कुछ अच्छे मेमोरीज लेकर जाए, कि आपको लगे कि हाँ, ये एक बंदा आया था बंबई से और बड़ा मजा आया, मतलब मिलकर मजा आया. और जब भी मौका मिलेगा अहमदाबाद, गुजरात में अगर आने का मौका हुआ तो मैं आप लोगों से जरूर मिलना चाहूंगा. राइट. सो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई that you have all joined on the Saturday evening and you have taken time out to learn something in your life. Right. So if I can have some responses in the chat now, what is your idea of success? आपके हिसाब से success क्या होता है? What is success according to you? If you can please put some responses in the chat. जो भी आपको लगता है, whatever you think is what success is all about. Yes. Okay. To achieve your goals. Okay. Thank you, Biswaya Das. Okay. What are the other ideas that you have about success? Anything else? Yes. Can I have more responses, please? अगर आप चाहते हैं कि सेशन बढ़िया रहे तो बहुत जरूरी है कि आप मेरे साथ एंगेज रहे. राइट.
So yeah, can I have some more definitions please? आपको जो भी ठीक लगे आप लिख सकते हैं. तो थोड़ा सा मुझे एक thread मिल जाएगा. From I can pick up the thread and I can keep talking to you accordingly. Yes, to achieve your goals. What else? What else? और क्या हो सकता है? What else can success be? Continued growth towards goals and objectives. Okay, very good, to get desired results. Excellent. What else? Best reputation with your dreams, goals. Okay, wonderful. Thank you, Meghna. Okay. What else? बस इतना ही है सक्सेस के बारे में. और भी बातें हो सकती है. How many of you think okay, aim on your target vision? How many of you think making money is also success? Happiness is success. Very good, wonderful. How your child describes you with his or her friend? अरे क्या बात है चिराग जी. Wonderful. How are you a role model for your children? Wonderful, excellent. What about money? Money, fame. Does that also contribute to success? Yeah, yes, no, maybe. Yes, it is also contributing to success. Absolutely. Yeah, wonderful. Right? So, as we have seen here, everybody has their own idea of success. हर एक की अपनी परिभाषा है. हर एक का अपना एक सोच है कि सक्सेस क्या होता है. राइट? सो वेरी इंटरेस्टिंग. सो शुरू करते हैं मेरी तरफ से. और आपने जो बातें बताई उसको कहीं ना कहीं हम उसको सेशन के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे. सबसे पहला मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं. मैं एक अपने जीवन में जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की, आई वॉज ए जर्नलिस्ट. So for 6 years of my life, I was a journalist. I worked for I worked for 2 different newspapers and a portal, a personal finance portal. तो हम लोगों को ब्रेकिंग न्यूज की आदत होती थी, राइट? सो आज मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं. और वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सक्सेस और फेलियर ऐसा कुछ होता ही नहीं है. आप बोलेंगे हद हो गई, आपने कंपनी का नाम रखा है हरिहरन स्कूल ऑफ सक्सेस एजुकेशन, आपने टॉपिक रखा है सक्सेस सत्संग, और आप बोल रहे हैं कि सक्सेस और फेलियर जैसा कुछ होता ही नहीं है. ये मैंने बहुत सोचा और मुझे बात समझ में आई. आई केम टू रियलाइज दैट बोथ सक्सेस एंड फेलियर आर सिंपली एन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ. If you think you are successful, you have achieved something, that's an experience. If at any point of time in your life you have faced failure, and we all have faced failure in our life, if at any point of time you feel I have failed, I have not won something, somebody is doing better than me, I set a target, I could not achieve it, whatever, I failed, that is also an experience. अब एक्सपीरियंस के साथ क्या होता है? एक्सपीरियंस आज होता है, फिर कल एक नया एक्सपीरियंस होता है. तो अगर हम उस एक्सपीरियंस से अटैच हो गए, अगर हमने सोचा बस इसी एक्सपीरियंस को पकड़कर मैं जिंदगी भर चलूंगा, तो ये तो होगा नहीं. सो बोथ सक्सेस एंड फेलियर आर पासिंग फेजेस ऑफ लाइफ. You are successful today, you may not be successful tomorrow. You are a failure today, you failed in something, which is fine. There's nothing wrong with that. We all fail. I have failed big in many big areas of my life. That's okay. You learn and you move. So if you think you have failed in something today, you can be successful tomorrow. It's a cycle. It will repeat itself. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आज हमको क्रिकेट से देखने को मिल रहा है. विराट कोहली.
I am a great fan of Virat Kohli, the batsman. मतलब the kind of energy he brings and the kind of commitment he has, the kind of preparation he does. He's a phenomenal player, right? But look at how things can change very quickly in life. जिंदगी में कैसे चीजें बदलती है जल्दी जल्दी. कुछ महीनों पहले he was one of the most powerful guys around. He's still powerful in his own way, but he was a captain in all the 3 formats. He was winning various matches. Suddenly he is not a captain anymore of any of the formats. He is just another player. And sorry, I'm having a little bad cold and cough, so you'll have to bear with me. So he is now having to prove himself as a batsman. Tomorrow things might change again. He might start scoring runs all over again. Right now he's going through a dip in form. He might again become captain. You never know. And things are changing. That's what life is all about. So सबसे ज्यादा जो हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि आज जो परिस्थिति है वो जिंदगी भर नहीं रहेगी. आज आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, भगवान को थैंक यू बोलना है. जरूरी नहीं है कि कल दिक्कतें नहीं आएगी. आज आपके जीवन में कुछ दिक्कतें आ रही है, जरूरी नहीं है कि वो जिंदगी भर आपका लाइफ में प्रॉब्लम से रहेंगे. नहीं, कल वो बदलेगा. लेकिन हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए और दोनों ही हालात में हमें सम रहना चाहिए. डोंट गेट कैरिड अवे बाय सक्सेस एंड डोंट गेट वेरी इमोशनल व्हेन यू एक्सपीरियंस फेलियर. राइट? तो ये एक मैं आपको कुछ बेसिक सक्सेस के बारे में एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाह रहा था. आज मैं जो बात करने वाला हूं आपसे वो है सक्सेस शब्द को लेकर. एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सक्सेस? SUCCESS. राइट? So what is the spelling of success? SUCCESS. Right? So I'm going to talk about, sorry, गलती से एक एक्स्ट्रा ई टाइप हो गया. So I'm going to talk to you about हर एक अल्फाबेट को लेकर आज हम सक्सेस के बारे में कुछ सीखेंगे. उसके पहले जो मुझे लगता है, जो मैंने अनुभव किया है जीवन में, कि जिंदगी में 2 पहलू होते. एक हमारा अपना निजी जीवन होता है, हमारा अपने साथ एक रिश्ता होता है, और हमारा परिवार होता है, हमारा फैमिली होता है, हमारे दोस्त होते हैं. ये हमारा एक पर्सनल साइड ऑफ लाइफ होता है. वहां पर भी खुश रहना, उन रिलेशनशिप्स को मैनेज करने की जरूरत है. वहां पर भी हार्मनी की जरूरत है. और दूसरा होता है हमारा करियर. अगर कोई ये जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके लिए, अगर कोई व्यवसाय कर रहा है तो उनका बिजनेस, जैसे मैं अपना व्यवसाय करता हूं, तो उसमें हमको कामयाबी चाहिए, हमको अपना प्रमोशन चाहिए, अपना इंक्रीमेंट चाहिए, अपना ग्रोथ चाहिए. कंपनी के अंदर, अपने करियर के अंदर एक दर्जा की हमारी इच्छा होती है. ये एक सक्सेस का दूसरा पहलू है. और सही मायने में आपको दोनों ही तरफ से अपने आप को अच्छा रखना है. तो मैंने देखा है, और आजकल ये बातें कोविड के बाद लोगों को ज्यादा समझ में भी आ रही है,
कि आप जितना अपने पर्सनल हार्मनी को सैक्रिफाइस करके पैसा, करियर, सक्सेस के पीछे ही पड़े रहेंगे तो फाइनली होगा क्या? आपका हेल्थ बिगड़ सकता है। और एक बार हेल्थ बिगड़ा और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को आपने कुर्बान कर दिया बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के चक्कर में, तो बचेगा कुछ भी नहीं। सो सही मायने में सक्सेस का अर्थ होता है बैलेंस। हमें बैलेंस रखना चाहिए अपने जीवन में। तो इस बात को समझने के लिए आज हम मिले। दूसरी बात, कई लोगों को लगता है कि मैं जिस दिन कामयाब हो जाऊंगा वो दिन मैं खुशी का अनुभव करूंगा। ऐसा नहीं है। Many people think the day I am successful, I will be happy. It is not like that. If you are happy, you will be successful. सबसे जरूरी है जिंदगी में खुश रहना। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। ज्यादा है तो उस मोह में पड़ना नहीं है। थोड़ा है तो उसमें भी खुशी पा लेनी है। तो सबसे पहले हमें एक जिंदगी में अपने आप को खुश रखने का प्रैक्टिस करना है। और मजे की बात क्या है कि सक्सेसफुल बनने के लिए कोई कारण की जरूरत नहीं है। लेकिन नाकामयाब होने के लिए कई कारण होते हैं, या दुखी होने के कई कारण होते हैं। सड़क ठीक नहीं है, सरकार ठीक नहीं है, समाज ठीक नहीं है, सास ठीक नहीं है, बहू ठीक नहीं है, पति ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं है, पड़ोसी ठीक नहीं है। हजार कारण होते हैं दुखी होने। मुझे ये साल इंक्रीमेंट नहीं मिला, मुझे ये साल प्रमोशन नहीं मिला, वो मेरे से आगे निकल गया। ऐसे हजार कारण है दुखी होने। लेकिन खुश होने के लिए कोई कारण की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही खुश हो सकते। बाथरूम में नहाने चले गए, गाना गा लिया आपने, बाथरूम सिंगर बन गए। और मजे की बात है कि जब आप बाथरूम में गाना गाते हैं, कितना भी बेसुरा गाओ, अंदर कोई नहीं आएगा। बिंदास गाओ, खुश रहो। और जिंदगी की छोटी छोटी बातों में खुशियां होती है। साथ में मिलकर चाय पी लिया, साथ में मिलकर कोई थोड़ा सा जलेबी फाफड़ा खा लिया, उदयपुर में, जयपुर में पोहे खा लिए। ये महंगे नहीं होते, ये खुशियां महंगी नहीं होती है। लेकिन हमने खुशी को बना दिया है बहुत महंगा, और हमने सक्सेस को बना दिया है बहुत सस्ता। सक्सेस को पाने के लिए, अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस को पाने के लिए बहुत परिश्रम लगता है, सैक्रिफाइस लगता है। तो ये दोनों बातों को कंफ्यूज नहीं करना है। खुश रहने की प्रैक्टिस करनी है। और किसी ने कहा है, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। अच्छा लगे तो वाह वाह जरूर लिखना, मैं आपको दो चार शायरियां भी सुनाऊंगा। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कुराना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी को जियो इस अंदाज में
कि लोग आपको देखकर कहे कि वाह जिंदगी कितनी खूबसूरत है। अच्छा लगे तो चैट पे जरूर वाह लिखना। थैंक यू सर्वेश। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कुराना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी को जियो इस अंदाज में कि लोग आपको देखकर कहे कि वाह जिंदगी कितनी खूबसूरत। कई बार क्या होता है कि हम कुछ लोगों को देखकर लगता है जिंदगी कितना बेकार है यार, हम दुखी हो जाते हैं उसको देखकर। यस यस यस। और कई लोग हमको देखकर दुखी हो जाते हैं। तो हमें जिंदगी में खुश रहने का प्रैक्टिस करना, ये सबसे बड़ा इससे इससे बड़ा सक्सेस लाइफ में है नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, क्या फायदा कि आपने बहुत कमा लिया। मैं ये नहीं कहता मत कमाओ, मैं ये नहीं कहता कि एस्पिरेशन मत रखो, एम्बिशन मत रखो। मेरे भी बहुत बहुत बड़े बड़े एम्बिशन है, लेकिन अगर वो उस सोच को लेकर मैं दुखी होता हूं तो वो उस एम्बिशन का कोई मतलब नहीं। वो एक प्रोसेस है, अपने समय पर जब होगा होगा। आप अपना कर्म करते जाओ। सो 2-3 बातें हमने सीखी अब तक कि सक्सेस क्रिएट्स हैप्पीनेस, ऐसा नहीं है। इट इज हैप्पीनेस दैट क्रिएट्स सक्सेस। और खुश रहने का प्रैक्टिस करो। बहुत सारी बातों का हम बोलते रहते हैं, ये प्रैक्टिस करो, वो प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज करो, ये करो, लेकिन खुश रहने का प्रैक्टिस करो। अब मैं आपसे फिर से चैट में रिस्पॉन्स चाहूंगा कि कितने लोग जीवन में एक कंफर्टेबल जिंदगी जीना चाहते हैं। तो आप यस लिखिए। कितने लोग एक कंफर्टेबल सुखद जीवन जीना चाहते हैं? हाँ, अगर किसी को लगता है नहीं मुझे सुखद जीवन नहीं चाहिए तो आप नो लिख सकते हैं। कंफर्टेबल लाइफ, वेरी गुड। ओके ओके, excellent. I can see many people who want to lead a comfortable life. Okay, now my next question. How many of you would like to lead a successful life? So can you please type yes for success or no for success, whatever your choice is. Great, excellent. अब ये विडंबना है जीवन का कि आपको कंफर्टेबल लाइफ भी चाहिए और आपको सक्सेसफुल लाइफ भी चाहिए। ये नहीं हो सकता। अगर आपने दोनों के लिए यस लिखा है तो आपको जिंदगी में एक चुनाव करना पड़ेगा कि आपको जिंदगी में सक्सेस चाहिए या कंफर्ट चाहिए। कंफर्टेबल लोग कभी सक्सेसफुल नहीं होते और सक्सेसफुल लोग कभी कंफर्टेबल नहीं रहते। ऐसा कोई इंसान नहीं है दुनिया में जो कंफर्टेबल होकर सक्सेस को पाया, बिना कोई परिश्रम के, बिना कोई सैक्रिफाइस के, बिना कोई त्याग के। कोई आज तक सक्सेसफुल नहीं बना। भरत जी मुझसे कह रहे थे कि उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो घर से काम कर रहे हैं, इस सेशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैंने भी आपसे कहा, मैं भी थोड़ा सा सर्दी खांसी थोड़ा बहुत लगा हुआ है, फिर भी मैं सेशन ले रहा हूं उतने ही पैशन के साथ जैसे मैं लेने की कोशिश करता हूं। तो हम कंफर्टेबल नहीं है। सॉरी, हम कंफर्टेबल नहीं है। आप भी अपने अपने घर से, ऑफिस से सैटरडे शाम को एक जूम सेशन अटेंड कर रहे हैं, और 2 साल से हम लोग पैंडेमिक की वजह से जूम पर सेशंस कर रहे हैं। हम कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन हम सक्सेसफुल हैं। क्यों? क्योंकि इन तकलीफों के बावजूद हमने सोचा
कि मैं कुछ सिखाऊंगा और आपने सोचा कि मैं कुछ सीखूंगा। नेटवर्क इशू होता है, घर वाले बोलते हैं क्या जब देखो लैपटॉप में बैठा रहता है, मोबाइल पे बैठा रहता है। उन सभी तकलीफों के लिमिटेशंस के बावजूद आपने चुनाव किया कि मैं अटेंड करूंगा। मैं कुछ बात, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, कि मैं कुछ बातें सीखूंगा। सो कंफर्टेबल लोग कभी सक्सेसफुल नहीं होते और सक्सेसफुल लोग कभी कंफर्टेबल नहीं रहते। और सक्सेसफुल लोग अपने डिस्कंफर्ट में ही अपना कंफर्ट को ढूंढ लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सक्सेस जो शब्द है, उसी शब्द का इस्तेमाल करके हम आज सक्सेस को समझने की कोशिश करें। सबसे पहला जो अल्फाबेट आता है सक्सेस में हुआ है एस। मैं आपकी सुविधा के लिए चैट में लिख रहा हूं कि एस इज स्टैंडिंग फॉर सेंसिटिविटी। अगर आप जिंदगी में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो सेंसिटिव इंसान बनिए। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? सेंसिटिव इंसान कौन है? सेंसिटिव इंसान वो है जिसको दूसरों का दुख देखकर उसको भी दुख होता है, दूसरों का तकलीफ देखकर उसे भी तकलीफ होता है। वो प्यार बांटना चाहता है, सहानुभूति बांटना चाहता है, अंडरस्टैंडिंग बांटना चाहता है, और एक इंसान को एम्पैथी, वेरी करेक्ट, एम्पैथी रखता है। और एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान जो तकलीफ में है अपनी तरफ से कुछ ऐसा करे कि उसका तकलीफ कम हो। वो एक ऐसा कंट्रीब्यूशन देना चाहता है जीवन। वो खुदगर्ज नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है, वो पूरा अपने समाज के बारे में सोचता है। वो ये सोचता है कि अगर मैं मास्क पहन के बाहर जाऊंगा तो आई एम क्रिएटिंग ए मोर सिक्योर सोसाइटी ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। वो ये नहीं सोचता कि मेरे अकेले मास्क पहनने से क्या हो जाए। वो ये सोचता है कि मैं अपनी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन दूं, मैं अपने आप को सेफ रखूं और मेरे आजू बाजू लोगों को सेफ रखूं, बस। तो आप जो काम करते हैं अपने कंपनी के अंदर, अगर आपको लगता है ये तो परिवार को संभालना है, 2 वक्त की रोटी खानी है, जिंदगी को जैसे तैसे निकालना है, अपने करियर में कुछ करना है, बस उसके वजह से मैं काम पे जाता हूं, पैसा कमाने के लिए जाता हूं, तो ये परिपूर्ण सोच नहीं, या इस सोच में वो परिपक्वता नहीं है, वो मैच्योरिटी नहीं है। आप जो काम करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर बेनिफिटिंग सोसाइटी। अगर आप इस सोच के साथ रोज काम पे जाएंगे तो काम का जो मीनिंग है वो बदल जाएगा और आपको काम करने में ज्यादा मजा आएगा। तो आप ये मत सोचिए कि बस मेरा काम क्या है, मैं मेरे को कोई पूछता नहीं, मैं रोज सुबह जाता हूं, शाम को घर आता हूं, कुछ करता हूं। नहीं, कोई आपको पूछे ना पूछे,
कुछ लोग आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कंपनी में, कुछ लोग थोड़े कम इंपॉर्टेंट होंगे, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा यह समझने की जरूरत है हर इंसान कंपनी के अंदर महत्वपूर्ण है अपने अपने तरीके से। क्रिकेट में किसी ने 100 मारा वनडे क्रिकेट में, और लास्ट बॉल में 6 रन की जरूरत थी, 11वां बैट्समैन ने आके छक्का मारा, लोग वो 100 रन भूल जाते हैं, वो छक्का याद रखते हैं, क्योंकि उस छक्के का उतना ही महत्व है जितना वो 100 का महत्व है। Every little thing that you do for your patients, every little thing that you do for your customers is valuable in your own little way. तो एक सेंसिटिव इंसान बने, मुझे लोगों को हेल्प करना है, इस तरीके की भावना से काम कीजिए, तो काम करने में अलग ही मजा आता है। और मैंने देखा है कि जो लोग केवल पैसे के लिए काम करना चाहते हैं, उनको मजा आता भी नहीं काम करने। पैसा जरूरी है, लेकिन पैसे के साथ एक मिशन होना बहुत जरूरी। तो एस इज फॉर सेंसिटिविटी। अब जो अगला अल्फाबेट है वो है यू। यू का मतलब यू, आप और मैं। आपको और मुझको अपने जीवन को कैसा जीना चाहिए। मैंने एक चीज सीखा अपने लाइफ में, और मैं ये बात सबसे शेयर भी करता हूं, कि जिंदगी में खुश रहने का शॉर्टकट। क्या आप जानना चाहेंगे जिंदगी में खुश रहने का शॉर्टकट? तो चैट में यस लिखिए। ओके, सर्वेश ने फटाफट यस डाल दिया। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग बोल रहे हैं लॉन्ग कट बताओ, शॉर्टकट मत बताओ। T20 का जमाना है, शॉर्टकट चलता है यहां पे, गलत वाला शॉर्टकट नहीं। वेरी गुड, थैंक यू। तो मैंने जो समझा जिंदगी में कि खुश रहने का शॉर्टकट, अपने काम से मोहब्बत करो और लोगों से थोड़ा कम मोहब्बत करो। सबसे ज्यादा प्यार अपने काम से करो और लोगों से थोड़ा कम प्यार करो। ये जाके डायलॉग अपने परिवार को नहीं सुनाना आज। ये सर ने बोला है कि तुमसे प्यार कम करने का, अपने इमीडिएट फैमिली के बारे में मैं बात नहीं करता हूं। कहने का मतलब क्या है बॉस? अगर आप लोगों से ज्यादा प्यार करोगे तो खर्चा ज्यादा होगा, काम से ज्यादा प्यार करोगे तो पैसे ज्यादा कमाओगे। सिंपल है। तो यहां पर एक और शेर तो बनता है। तो एक बहुत बड़े शायर थे, फैज अहमद फैज, इरशाद। बहुत बड़े शायर थे फैज अहमद फैज, और उनका एक बहुत ही पॉपुलर नज्म है, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। उसमें से कुछ लाइन मैं आपको सुनाता हूं जो मेरे इस पॉइंट को दर्शाता है। हो सकता है उन्होंने अपने कॉन्टेक्स्ट में लिखा होगा, मैंने अपने कॉन्टेक्स्ट में उन शब्दों को ले लिया है। वो कहते हैं कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे, या काम से आशिकी करते थे, या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, काम किया।
हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। तो अपने काम से इश्क कीजिए। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि जब आदमी अपना काम से इश्क करने लगता है तो उसके जीवन में दुखी होने का कोई कारण बचता ही नहीं, क्योंकि हमारा सारा जीवन तो हमको तो काम करना ही है। और प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ता जाता है, क्योंकि आपको अपने काम से प्यार है। आप टाइम नहीं देखते, टाइम देखना जरूरी है, बैलेंस करना है लाइफ को, लेकिन कुछ लोग हर 1 घंटे में घड़ी देखते रहे कब खत्म होगा, तो वो लाइफ में खुश नहीं रह सकते। तो आप अपने काम से इश्क कीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। आपके अंदर अनगिनत, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को आपको हवा देनी है, मतलब आपको उसको बढ़ाते रहना है। और पोटेंशियल कब बढ़ता है? जब आप अपने काम से प्यार करते हैं और सीखने से मोहब्बत करते हैं। लर्निंग से प्यार होना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहने की कला आनी चाहिए, आदत होनी चाहिए, अच्छी किताबें पढ़ने की आदत होनी चाहिए, और अच्छे वक्ताओं को सुनने की आदत होनी चाहिए। आज YouTube में इतना कुछ आप अच्छी बातें सुन सकते हैं, फ्री में मिलता है। टुडे इट्स वेरी इजी टू लर्न, सो बी अ लर्नर इन लाइफ। Learners are the real leaders, and every good leader is first a good learner. तो चलिए, हमने एस और यू की बातें की, अभी हम चलते हैं सी फॉर कैरेक्टर। एक होता है कोई गलत काम नहीं करना, दूसरा होता है सही काम करने का धैर्य रखना, करेज रखना। आपके अंदर वो कैरेक्टर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, और जो सही है वो करना है, वो भले कन्वीनियंट नहीं हो। समटाइम्स व्हाट इज करेक्ट इज नॉट कन्वीनियंट, और जो गलत है, कितना भी टेम्पटेशन हो या कितना भी लोग बोले यार चलता है, यार ये तो भारत में तो चलता है ना, चलता है, एटीट्यूड चलता है, नहीं करना। सो कैरेक्टर का मतलब क्या है? कैरेक्टर इज what you do when no one is watching you. What is character? What you do when no one is watching you. कैरेक्टर वो है कि आप क्या काम कर रहे हैं जब आपको कोई देख नहीं रहा हो, यह आपका सही कैरेक्टर। दूसरों के सामने आप कुछ दिखाते हैं, जब अकेले होते हैं कुछ और करते हैं, तो वो आपका सही कैरेक्टर नहीं, मतलब आप दोहरा पर्सनैलिटी के। सो लाइफ में कैरेक्टर होना चाहिए। कई बड़े बड़े लोग सक्सेसफुल हुए, पैसा कमाए, लेकिन गलत कमाए। आज या तो जेल में है या फिर कानून उनके पीछे पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट उनके पीछे पड़ा। सो नेटफ्लिक्स में एक बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट्री है,
उसका नाम है बैड बॉय बिलियनियर्स, जरूर देखना उसको। इट टेल्स यू अबाउट few entrepreneurs, very famous successful businessmen who are all running away from the law right now. They made the money but not in the right way. So character, अपना कैरेक्टर को स्ट्रांग रखना है, तो कोई फायदा नहीं है लाइफ का। मतलब एक सक्सेसफुल लाइफ का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस सक्सेस में वो धब्बा लग जाता है। सो अगला सी है, हमने एस फॉर सेंसिटिविटी, यू फॉर यू, सी फॉर कैरेक्टर का बात किया। अगला जो अल्फाबेट है वो है कॉम्पिटेंस। अपना कॉम्पिटेंस बढ़ाइए, अपना कैपेबिलिटी बढ़ाइए। अपना कैपेबिलिटी बढ़ाना है, कुछ ना कुछ अपना स्किल डेवलपमेंट कीजिए। कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाइए, रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल बढ़ाइए, कस्टमर हैंडलिंग स्किल बढ़ाइए। क्योंकि सिर्फ टैलेंट से आप जिंदगी के जंग को जीत नहीं सकते। जिंदगी एक प्रकार का जंग ही है, जंग भी उसका एक हिस्सा है। मतलब आपकी लड़ाई किसी और के साथ नहीं है, आपके और आपके भगवान ने जो आपके लिए कुछ बनाया होगा उसके साथ है। चलता है, अच्छी लड़ाई है, मतलब बुरी लड़ाई नहीं है, खून खराबे वाली लड़ाई नहीं, एक एवोल्यूशन की लड़ाई। हम उभर रहे हैं, वी आर बिकमिंग बेटर पीपल। सो सिर्फ अपने टैलेंट पर निर्भर मत रहिए, अपने स्किल डेवलप कीजिए। मतलब हर कंपनी को अपने एम्प्लॉइज के लिए रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना चाहिए। कस्टमर सर्विस हो गया, लीडरशिप हो गया, मैनेजमेंट हो गया, मोटिवेशन हो गया, नेगोशिएशन स्किल हो गया, सेलिंग स्किल हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हुआ। सीखने के लिए और अपना स्किल डेवलप करने के लिए, मतलब आप सोचिए समंदर है। तो मैं कई बार सोचता हूं कि मेरा प्रोफेशन कितना खूबसूरत है, कितना कुछ है सीखने के लिए, कितना कुछ है सिखाने के लिए। और मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे सिखाने के लिए सीखना पड़ता है, तभी तो मैं सिखा सकता हूं। और बहुत सारे कंपनीज के साथ ये प्रॉब्लम है कि अच्छा हम सिखाएंगे, हमको फायदा क्या होगा, धंधा बढ़ेगा। बात आज सीखा और कल धंधा बढ़ने की नहीं है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आज मैं खाना खाऊंगा तो क्या मेरे को एक हफ्ते तक भूख नहीं लगेगी, ऐसा तो ये तो सवाल गलत है ना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। खाना तो रोज खाना है, वैसे ही सीखना भी रोज ही पड़ता है। रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराना जरूरी होता है, ये एम्प्लॉइज के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट होता है। द कंपनी ऑलवेज, आप खुद पढ़ सकते हैं, अच्छी किताबें खरीद सकते हैं, अच्छे वक्ताओं को सुन सकते हैं, आप टिकट लेके कोई प्रोग्राम में जा सकते हैं, जूम में ज्वाइन कर सकते हैं। सो कंटिन्यूअसली अपना स्किल डेवलपमेंट आपको बढ़ाना है। अब अगला जो शब्द है वो है एक्सलेंस, SUCCE, एक्सलेंस। एक्सेलेंस का क्या मतलब है कि अपने परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी रखना, अपने बढ़िया परफॉर्मेंस में, खराब परफॉर्मेंस में नहीं, अपने बढ़िया परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी रखना।
तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान इसलिए माना जाता है क्योंकि वो लगातार 24 साल तक अपने करियर में उन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया। आज अमिताभ बच्चन को एक लेजेंड माना जाता है क्योंकि वो 50 साल से जो इंडस्ट्री में है, उनका काम का क्वालिटी कभी ज्यादा गिरा नहीं और वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। और काम करने का भूख कितना है, 80 साल की उम्र में 15-16 घंटा काम करते हैं बच्चन साहब। तो ये गलत धारणा है कि पैसा आ गया तो काम करने की जरूरत नहीं है। आप जितना शिद्दत से और अपने पैशन से काम करेंगे, पैसा तो आप बनना ही है। किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को आज, किसी को कल। इनपुट डालेंगे, आउटपुट आएगा। एक्सेलेंस का एक खूबसूरत कहानी मैं बताता हूं आपको। एक शिल्पकार, स्कल्प्टर एक मूर्ति बना रहे थे एक मंदिर के 22वें माले, और उस मूर्ति का नाक को वो थोड़ा ठीक कर रहे थे। उनको मजा नहीं आ रहा था, और ये ठीक नहीं है, इसको ठीक कर रहे। उनका उनका दोस्त खड़ा था उनके साथ, और उन्होंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा कि ये जो मूर्ति है ना, इसका नाक थोड़ा ठीक नहीं है, मैं इसको ठीक कर रहा हूं। दोस्त ने बोला क्या फर्क पड़ेगा, ये तो 22वें माले पे तुम खड़े हो मंदिर के, किसी को दिखाई भी नहीं देगा, तो तुम क्यों इतना चिंता कर रहे हो, उसके पीछे पड़ गए हो। तो उन्होंने, उस शिल्पकार ने कहा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी को दिखाई देता है या नहीं देता, मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है कि जब मैं रात को सोने जाऊंगा तो मेरे दिमाग में आएगा कि ये इसका नाक को मैंने ठीक से नहीं किया है, मेरा काम अधूरा है। ये एक्सेलेंस है। ये कोई इवेंट नहीं है, ये एक आदत है। हमारे हिंदी फिल्म के जो पुराने गायक थे, जैसे रफी साहब, मेरे ऑल टाइम फेवरेट, वो इतने महान कैसे बने। रफी बने या किशोर बने या आशा जी बने या मन्नाडे बने या लता जी बने, कैसे बने, मुकेश बने। ये रियाज करते थे, रियाज, घंटों प्रैक्टिस। एक सुर इधर नहीं उधर नहीं होना चाहिए, एक शब्द का उच्चारण इधर का उधर नहीं होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मुकेश जी ने एक गाने का रिकॉर्डिंग रात को 9 बजे शुरू किया और सुबह 6 बजे तक वो रिकॉर्डिंग चला। अनगिनत रीटेक्स हुए क्योंकि मुकेश जी सेटिस्फाइड नहीं थे कि उन्होंने एक पर्टिकुलर लाइन को, वो सेटिस्फाइड नहीं थे कि मैंने ठीक से गाया। तो बार बार वो म्यूजिक डायरेक्टर को बोल रहे थे, फिर से गाता हूं, फिर से गाता हूं, फिर से गाता हूं। रात को जो 8-9 बजे रिकॉर्डिंग शुरू हुआ है, वो एक गाने का रिकॉर्डिंग सुबह 6 बजे तक चला। ये एक्सेलेंस है, ये पैशन है, अपने काम को शिद्दत से करने का पैशन, अपने काम को सबसे बढ़िया तरीके से करने का जुनून। तो एक्सेलेंट लोग सोचते हैं कंसिस्टेंसी, काम में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, टॉप क्वालिटी काम होना चाहिए। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक कल्चर होता है। जब हम एप्पल कंपनी के बारे में सोचते हैं तो हमको लगता है एक कल्चर ही है एक्सेलेंस का। हम टाटा के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि एक कंपनी का एक्सेलेंस कल्चर बना हुआ है इस कंपनी के अंदर। वी थिंक अबाउट गूगल, वी थिंक अबाउट एक्सेलेंस। वी थिंक अबाउट स्टारबक्स, वी थिंक अबाउट एक्सेलेंस। वी थिंक अबाउट एप्पल, वी थिंक अबाउट एक्सेलेंस। नेक्स्ट जो अल्फाबेट है वो है सिस्टम।
एस, प्रोसेस ओरिएंटेशन। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। चाय बनाने का भी प्रोसेस होता है। लगता बड़ा सीधा साधा काम है नहीं, उसमें भी 5-6 स्टेप्स होते हैं। बर्तन निकालो, मेजर करो कितना पानी डालना है, कितने लोगों के लिए बनाना है, कितनी चाय की पत्ती पड़नी चाहिए, कितना शक्कर पड़ना चाहिए, क्या मसाले डालने चाहिए, अदरक डालना है नहीं डालना है। मैं गुजरात में कई बार मसाला चाय पिया, मतलब अलग ही मजा आता है वहां पर अहमदाबाद में या सूरत में आकर चाय पीने का, क्योंकि एक उनका बनाने का जो शैली है, कितनी बार वो चेक करते हैं, मिक्स करते हैं, टेस्ट करते हैं, प्रोसेस फॉलो करते हैं, सिस्टम। आप शॉर्टकट नहीं मार सकते लाइफ में। शॉर्टकट मारने से शॉर्ट सर्किट होता है। तो आपको सिस्टम फॉलो करना है। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? एस फॉर सेंसिटिविटी, यू फॉर यू, सी फॉर कैरेक्टर, सी फॉर कॉम्पिटेंस, ई फॉर एक्सलेंस, एस फॉर सिस्टम, and the last is again S for simplicity. एक सादगी भरा जीवन जीने की कोशिश कीजिए, कॉम्प्लिकेट मत कीजिए और दिखावा मत कीजिए। आप जैसे हैं बढ़िया है, अच्छा बन सकते हैं, और भी हम सभी लोग और बेहतर बन सकते हैं, ये तो सभी के लिए है। अपने आप से प्यार कीजिए, गलतियां होती है सीखिए, माफ कीजिए, आगे बढ़िए। मैं सोचकर हैरान होता हूं, रजनीकांत जो शायद ही दुनिया में उनसे बड़ा ब्रांड नहीं है, कितना सादगी भरा उनका लुक है। वो कभी भी कुछ छुपाते नहीं, जो है वो है। जो फिल्म में जो मेकअप लगाना है वो लगा के काम करना है, लेकिन असली जिंदगी में जो है वो है। मैं ऐसा दिखता हूं, कोई प्रॉब्लम है तुमको? कोई प्रॉब्लम। वो कितना अंदर से सुरक्षित महसूस करते हैं अपने बारे में। और एक बहुत ही अच्छे इंसान है वो, इस वजह से लोग उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बड़े स्टार हैं। उनकी कहानी लाइफ के बारे में मैंने पढ़ी है और थोड़ा सुना है यहां वहां से भी, कि किस तरीके से आज भी वो अपने रूट्स के साथ जुड़े हुए हैं। एक अलग किस्म के रोल मॉडल है, एक अलग लेवल के रोल मॉडल। तो आज हमने सक्सेस के बारे में कुछ बातें की। जितना समय मुझे मिला मैंने कोशिश किया कि मैं आपको कुछ ऐसी अच्छी बातें बताऊं जिससे कि आप कुछ इन बातों पर अमल कर सके। कोई 2-3 बात को उठाइए, उसको इंप्लीमेंट कीजिए अपने लाइफ में। और जाते जाते एक 2 शायरी मैं आपको सुनाना चाहूँ। And how many ladies do we have on this in this session, Bharat? I think sir more than 10 to 15 sir. Excellent. I am the father of a daughter, a very proud father of a daughter, and I always have encouraged, we parents have always encouraged our daughter to do what she likes. And I am a great believer, कोई फर्क नहीं होता है बेटा बेटी में। हाँ, आप माने तो बेटियां ज्यादा स्पेशल होती है मेरे हिसाब से। ओके, इसका मतलब नहीं कि बेटे अच्छे नहीं होते, बहुत अच्छे होते, लेकिन उनको सम्मान देना बहुत जरूरी है, तभी ये देश आगे बढ़ेगा, ये समाज आगे बढ़ेगा। तो कैफी आजमी साहब ने जो
शबाना आजमी के पिता थे। सही मायने में तो हमको ये बोलना चाहिए कि शबाना आजमी कैफी आजमी की बेटी है, कि बहुत बड़े शायर थे वो जी। उन्होंने मेरे ख्याल से 1940 या 50 में यह नज्म लिखा था। उसमें से कुछ लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूं, बहुत इंस्पायरिंग है फॉर विमेन कि वो अपने आप में बिलीव करें। वो भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं जिंदगी में, बहुत कुछ पा सकते हैं, और उनको अंदर से वो सपोर्ट और सेल्फ सपोर्ट और इंस्पिरेशन मिलना चाहिए। तो कैफी आजमी साहब ने औरत करके एक नज्म लिखा था 1940s या 50s में। उसमें से कुछ लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूं, एक दो उर्दू के शब्द मैं आपको समझा दूंगा। कि कदर अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, कदर अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस बस अश्क फिशानी ही नहीं। मतलब तुझ में शोले भी है, सिर्फ आंसू ही नहीं। अश्क फिशानी का मतलब आंसू। तू हकीकत भी है, दिलचस्प कहानी ही नहीं। तेरी हस्ती भी है एक चीज, जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, अपनी तारीख का, अपना डेस्टिनी बदलना है तुझे, अपना तकदीर तुझे बदलना है, अपने तारीख का उन्वान बदलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है। आप इसको नेट पे पढ़ सकते हैं। सारे जो यहाँ पर मेल मेंबर्स हैं, फीमेल मेंबर्स हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा एक अच्छा कोऑर्डिनेशन में काम कीजिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट कीजिए, एक दूसरे का सहायता बनिए। और जो समाज आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देते, मैन एंड वुमन, हम आगे नहीं बढ़ सकते लाइफ। और हमारी पत्नी हो, हमारे पति हो, बेटा हो, बेटी हो, सास ससुर जो भी है, कलीग्स है, मिलकर एक अच्छा टीम बॉन्डिंग बनाकर एक समझदारी से काम कीजिए। तो देखो काम करने में भी मजा आता है, और कंपनी में तो 4 चांद लग जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा। जाते जाते मेरा एक फेवरेट शेर मैं आपको सुनाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने एक चीज जिंदगी में सीखा है कि गिरना उठना ये तो चलता रहता है। गिरना ठीक है, लेकिन उठने की क्षमता होनी चाहिए। फेलियर तो जिंदगी में आएंगे, कठिनाई तो आएंगी, आप उनका सामना कैसे करते हो ये आपके ऊपर है। तो किसी ने बहुत खूबसूरत, ये शब्द मेरा फेवरेट है और मैं मेरे हर सेक्शन में ये जरूर सुनाता हूं कि आज बादलों ने फिर साजिश की, आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वही बारिश की, जहां मेरा घर था वही बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशिया बनाने की। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशिया न बना। आप अपने कंपनी को एक आशिया समझिए, कंपनी के प्रति एक कृतज्ञ भाव रखिए, कंपनी को थैंक यू बोलिए कि आपके लिए एक ऐसे सेशन का आयोजन किया उन्होंने। और आप कंपनी को आगे बढ़ाएंगे तो कंपनी आगे बढ़ेगी और आप भी साथ में आगे बढ़ेंगे। हम सोचेंगे कंपनी मुझे आगे बढ़ाए, वो नहीं होता है वैसा, क्योंकि हम सभी को अपने प्लेटफॉर्म जो मिलता है उसका कदर करना बहुत जरूरी है। तेंदुलकर बड़े प्लेयर इसलिए नहीं बने सिर्फ क्योंकि वो अच्छा खेलते थे, उनको भारत जैसा क्रिकेट प्रेमी प्लेटफॉर्म मिला। अगर वो नाइजीरिया में पैदा होते तो क्रिकेट नहीं खेलते। तो सबसे बड़ा हमारा काबिलियत नहीं होता है, सबसे बड़ा हमारा प्लेटफॉर्म होता है, हमारी कंपनी होती है, राइट। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर, हैव अ ग्रेट 2022। आप लोग सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए,
और जिंदगी में सबसे जरूरी खुश रहिए, मिलजुल कर काम कीजिए, कंपनी को आगे बढ़ाइए, आप भी साथ में आगे बढ़िए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू हरि